خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کفایت شعاری کے حوالے سے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو کفایت شعاری سے متعلق تجاویز دے دی گئی ہیں، جس میں سرکاری سطح پر مفت پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی میں 30 سے 40% کٹوتی کی تجویز شامل ہے۔ گوادر میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مجھ سمیت تمام وزراء کو سادگی اختیار کرنا ہوگی، حکومت اور افسران کو بھی سادگی اختیار کرنا ہوگی۔ بولے غریب عوام پر مزید بوجھ لادنا ظلم اور زیادتی سے کم نہیں۔ اشرافیہ اپنے وسائل غریب عوام پر نچھاور کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر کہا پچھلی حکومت نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی نہیں کی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مجبوراً اضافہ کرنا پڑا۔ حکومت کے پاس قیمتیں بڑھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بولے عمران خان نے ہمارے لیے جال پھینکا کہ ہم پھنس جائیں۔ وزیر اعظم نے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، یا پھر جن کے پاس دولت کے وسائل ایسے ہیں جو کہ یہاں پر بات کرنا مناسب نہیں، تو پھر آج ان کا فرض ہے اور میں اس کو یقینی بناؤں گا انشاءاللہ کہ وہ اپنے وسائل غریب عوام کے قدموں میں نچھاور کریں۔ کل میں انشاءاللہ میٹنگ کر رہا ہوں حکومت کے حوالے سے بھی، اور سب سے پہلے اس کی شروعات مجھ ناچیز سے شروع ہوں گی، وزراء کے اوپر لاگو ہوں گی، مشیروں کے اوپر لاگو ہوں گی، سیکرٹریز کے اوپر لاگو ہوں گی، فیڈرل سیکرٹریز ہوں، پروونشل سیکرٹریز ہوں، سرکاری افسران ہوں، سیاستدان ہوں، سب کو اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہوگا، سادگی اختیار کرنی ہوگی اور سخت اقدامات سہنے ہوں گے، تبھی یہ ملک خدا داد ملک پاکستان یہ قائد اعظم حضرت قائد اعظم کی صحیح تصویر بن سکے گا اور ان کے خواب کی تعبیر بن سکے گا۔ اس کے بغیر وہ خواب ہمیشہ ادھورا رہے گا۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں نے کل میٹنگ کا میں نے اہتمام کیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں جو جائز اقدامات ہیں وہ کتنے بھی سخت ہیں، وہ امراء کو بھی، اشرافیہ کو بھی، حکومت کو بھی، وزیر اعظم کو بھی، وزراء اعلیٰ کو بھی، گورنرز کو بھی اور افسران کو بھی وہ اقدامات ان کو قبول کرنے ہوں گے، تاکہ یہ قوم مل کر ہم دن رات محنت کریں گے، سادگی اختیار کریں گے، قربانی دیں گے، تو انشاءاللہ ضرور وہ وقت آئے گا کہ ہم انشاءاللہ ان چیلنجز کو عبور کرتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے عوام کا احساس۔ سندھ کا کپتان سب پر بازی لے گیا۔ سندھ حکومت نے عوام پر مہنگائی کا بوجھ بانٹنے کے لیے بڑا قدم اٹھا دیا۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے سمیت تمام وزراء اور سندھ حکومت کے افسران کا پیٹرول کوٹا 40% کم کرنے کے احکامات دے دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، پیٹرول کی بڑھتی قیمت کا بوجھ خزانے پر مزید نہیں پڑنا چاہیے، خزانے پر بوجھ کا مقصد عوام پر بوجھ ڈالنا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر سینٹ میں اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا۔ اپوزیشن ارکان نے چیئرمین سینٹ کے ڈائز کا گھیراؤ کیا اور نعرے لگائے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے احتجاج پر ارکان کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی رکن اپنے بینچ سے دوسرے بینچ کے سامنے گیا تو اسے معطل کر دوں گا۔ صادق سنجرانی نے پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے نعرے لگائے تو آپ کی ممبرشپ معطل کراؤں گا۔ غلامی نامنظور، یہ غلامی کا شخصانہ ہے۔ Thank you, sir. زنجیروں کا شخصانہ ہے، Honorable Leader of the House, sir. IMF کا شخصانہ ہے۔ سر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں، ہم اس پیٹرول کے اضافے کو نہیں مانتے۔ آپ تشریف رکھیں اپنے نشستوں پہ، بات احتجاج کریں نشستوں سے جی۔ Honorable Leader of the House, sir. Leader of the House. سر اگر ڈاکٹر صاحب یہ کیا آپ لوگ کر رہے ہیں؟ اپنے نشست پہ چلیں ڈاکٹر زرکا صاحبہ، جناب چیئرمین، اپنے نشستوں پہ چلیں سر پلیز، اگر ان کی اپنے نشستوں کی طرف چلیں، محبت اس سائڈ پہ ہو جائیں ڈاکٹر زرکا صاحبہ، اس سائڈ پہ ہو جائیں، اگر ان کی پاکستانی عوام سے محبت کا یہ معیار ہے، اپنے نشستوں کی طرف ہو جائیں۔ عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ڈسکشن کے لیے بیٹھنے کے بجائے ان کو ادھر سائڈ پہ کریں، آئیں گے آگے سائڈ پہ پلیز۔
अपने साइड पे हो जाए मैडम, बात है मैडम मेरी बात सुने, इस तरफ हो जाए, चलें चलें जी चलें अपने साइड पे, पाकिस्तानी अवाम आप एहतजाज करें इस साइड पे, इधर इधर इधर, ये खुद तो इधर चलें। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं और और अब्बास साहब, अवाम साहब, ये डॉक्टर साहब इस साइड पे हो जाए प्लीज, ये मेरे ख्याल में इधर आ जाए, इस साइड पे आ जाए, डॉक्टर साहब इस साइड से करें, डॉक्टर साहब इस साइड पे आ जाएं जी। मुश्ताक साहब, कराची में महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से सिंध पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस का टेस्ट ड्राइव करने का फैसला किया गया है। ये फैसला सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शरजील मोहम्मद की ज़ेर सदारत सिंध पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस से मुतालिक इजलास में किया गया। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख, सेक्रेटरी इत्तलात अब्दुल रशीद सोलंगी, MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड अल्ताफ हुसैन सारियो और दीगर हुकाम ने शिरकत की। बराह रास्त आपको गवादा लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माहीगिरों से खिताब कर रहे हैं। 3200 सोलर पैनल तो वैसे ही चीन अपना फ्री गिफ्ट कर रहा है, लेकिन मैं जो प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ वो गवादर के तमाम घरानों के लिए सोलर पैनल्स होंगे। जो बिजली आप बिल देते हैं हर महीने, उसको जी कितना बिल देते हैं अंदाज़न, आपका महीना कितना देते हैं बिल अंदाज़न? 1000 रुपया, 2000 रुपया, कितना? नहीं, जो कम से कम 2-3 हज़ार होगा, 5000, ठीक। तो वो जो बिल देते हैं उससे कहीं कम जो होगी रकम, वो आपको सोलर पैनल मुहैया किए जाएंगे, बैंकों से आपको कर्ज मिल जाएगा, और वो जो आप बिजली का बिल अदा करते हैं उससे कहीं कम किस्त आप वो अपनी जो आपको सोलर पैनल मिलेगा उसकी कीमत आप अदा करेंगे, और फिर वक्त आएगा कि कीमत अदा हो जाएगी और बिजली पर आपके लिए मुफ्त होगी, तो आपको कोई इजाफी खर्च नहीं करना पड़ेगा। दूसरा मैंने ये कहा है कि अगर एक तो ये मॉडल है, दूसरा मॉडल है कि सोलर पार्क जिस तरह बिजली के होते हैं अपना ग्रिड, इस तरह सोलर पार्क बन जाए मुख्तलिफ जगहों पर, वहाँ पर वो ग्रिड में बिजली भेजने की ज़रूरत नहीं, वो बराह रास्त आपके घरों में आ सकती है, और आप जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे, बहुत सस्ती बिजली सोलर की, वो आप उसका बिल अदा करेंगे। पानी की पानी का मैंने आपको बता दिया है कि इंशाअल्लाह मैं ज़िंदगी रही तो बहुत जल्दी मुहैया कराऊंगा। तीसरी बात, जितने भी मछली पकड़ने वाले घराने हैं गवादर में, वो 10,000 हैं, 20,000 हैं, जितने भी हैं, किस्तवार हम आपको जो कश्ती में इंजन है वो वफाकी हुकूमत आपको मुफ्त मुहैया करेगी। पहले 2000 जो हमारे मचेरे ख़ानदान हैं उनके लिए शफाफ तरीके से, कुरानंदाजी से हम इंशाअल्लाह इंजन मुहैया करेंगे। इसी तरह उसका एक मेयार हो जाएगा। मैंने जनाब वज़ीर आला साहब को और एहसन इकबाल साहब को, इनको मैंने इसका हेड बना दिया है। वो आपके साथ मुशावरत के साथ, इंतज़ामिया के साथ इंशाअल्लाह मिलकर वो आपको ये इंजन इंशाअल्लाह, और बहुत जल्द, ये कोई महीनों की, सालों की बात नहीं, हफ्तों में आपको इंशाअल्लाह ये इंजन आपको हम मुहैया करेंगे। जी, और जो गैर कानूनी जो होती है ट्रॉलिंग, उसके लिए हमें इक़दामात उठाने पड़ेंगे, सख्त इक़दामात उठाने पड़ेंगे। उसके लिए भी एहसन इकबाल और जनाब वज़ीर आला मिलकर, और बाकी हमारी जो एजेंसीज़ हैं मिलकर आपसे गुफ्तगू करेंगी। मैं इंशाअल्लाह आपके पास दोबारा यहाँ पर 15-20 दिन में इंशाअल्लाह आऊँगा, और फिर मैं आपसे तफसील से बात करूँगा इंशाअल्लाह, और आपके मसाइल के लिए मैं बैठूँगा, चाय भी पीऊँगा आपके साथ, और मसाइल भी हल करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, और आपको अल्लाह ताला अपना खुशहाली अता फरमाए और आपके मसाइल हल करेंगे। ये मेरी और मेरे साथियों की जिम्मेदारी है। जब मैं अगली मरतबा आऊँगा तो आप में से 1-2 लोग
میں اسٹیج پہ بلاؤں گا 3-4 وہ مسائل بتائیں گے کہ یہ مسئلے ہیں, چاہے وہ اللیگل ٹرولنگ ہے یا بارڈر کے معاملات ہیں, وہ آپ مجھ سے بات کریں گے, میں اپنی ٹیم کے ساتھ ہوں گا اور آپ کے مسائل حل کریں گے. مجھے جانا ہے کیونکہ پھر دیر ہو گئی تو پھر وہ شام ہو جائے گی تو ہیلی کاپٹر ٹیک آف نہیں کرے گا, وغیرہ میں آپ کے ساتھ بیٹھتا. لیکن انشاءاللہ اسی مہینے جون کے آخر میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. وزیراعظم شہباز شریف گوادر میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے, آپ نے براہ راست دیکھا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. IMF کے دباؤ پر بجٹ میں سبسڈیز کم کرنے کی تیاری کر لی گئی. پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی پر سبسڈی کو مزید کم کرنے کی تجویز ہے. ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات پر 30 روپے کی لیوی کو برقرار رکھنے کی تجویز ہے. آئندہ مالی سال پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی وصولی بھی یقینی بنانے کی سفارش کی گئی ہے. ابھی آپ کو لیے چلیں گے براہ راست. مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں. اور جو ڈیٹا ہے, ایک ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. 5 وزراء وزیر خزانہ اس پوری مسخرے اور مذاق میں بدلے گئے. 7 FBR چیئرمین بدلے گئے. 6 سیکرٹری فائنانس بدلے گئے. آج جو صبح دوپہر شام معیشت کے خلاف چیخیں مار رہے ہیں لوگ, ان کو تو عمران خان نے وزارتوں سے نکالا ہوا ہے کارکردگی کی بنیاد کے اوپر. یہ وزیر خزانہ تھے سارے, فائنانس منسٹرز تھے سارے. اپنی شکلیں دیکھیں, اپنی باتیں سنیں. آپ کو تو آپ کے وزیر اعظم نے کارکردگی کی بنیاد پر وزارتوں سے نکالا ہوا ہے, فائنانس منسٹری سے. آپ کی اہلیت آپ کے وزیر اعظم نے قبول نہیں کی تو عوام کیسے قبول کرے؟ آپ کی باتوں پہ یقین آپ کی اپنی حکومت نے نہیں کیا تھا, آپ کے MNAs نے نہیں کیا تھا, آپ کے اتحادیوں نے نہیں کیا تھا, تو آج عوام کیسے کرے؟ یہ دستخط آپ نے کیے تھے. یہ شرائط اس ابہام کی وجہ سے, جب معیشت کمزور ہو گئی, جب معیشت تباہ ہو گئی, جب کانفیڈنس مارکیٹس کا ختم ہو گیا, آپ نے کمزور بنیادوں کے اوپر IMF سے یہ شرائط آپ نے لی. اور آپ کے سیکرٹری فائنانس یونس دھاگا صاحب نے کہا کہ یہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں, یہ IMF کے ساتھ غلط معاہدہ سائن ہو رہا ہے. آپ کے وزیر نے اٹھا کے باہر پھینکا بیوروکریٹ کو, اور اس کی وجہ سے اس نے استعفیٰ دیا اور 2 سے 3 سال کی اس کی ملازمت ختم ہوئی. کیونکہ وہ بات کر رہا تھا جو عوام کی بات تھی, جو اپوزیشن کر رہی تھی اس وقت, کہ IMF کی شرائط پارلیمنٹ میں لائی جائیں. تب IMF کی شرائط پچھلے دروازوں میں بیٹھ کر دستخط ہوئے, اور یہ شرائط ہوئی کہ ہر مہینے 30 روپے پیٹرول بڑھے گا اور 17% اس کے اوپر ڈیوٹی ٹیکس لگے گا. اور دوسری بات, آج نظم کیا لگی ہوئی ہے, ہم دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ بے روزگاری دیکھیں گے, معاشی تباہی دیکھیں گے, غربت دیکھیں گے, 44,000 ارب کا قرضہ دیکھیں گے, بدتمیزی دیکھیں گے, گالیاں دیکھیں گے, افراتفری دیکھیں گے, فساد دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ آپ کو تو شرم آنی چاہیے. نظموں کا مطلب پتہ ہے کہ ہم دیکھیں گے؟ نظم کا جو مطلب ہے وہ کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی عدم اعتماد کو عوام نے دیکھا, عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے, اور جب آپ نے آخری رات دیکھا کہ عدم اعتماد نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہا ہے, وہ سبسڈی دے کر چلے گئے جس کی خزانے میں پیسے نہیں تھے, جو ان شرائط کا حصہ نہیں تھے. یہ عدم اعتماد کی وجہ سے, اپنی کرسی کے اقتدار کے ہلنے اور جانے کی وجہ سے وہ سبسڈی دی جو خزانے میں پیسہ نہیں تھا. یہ دیکھیں گے, آپ کے جھوٹ دیکھیں گے, آپ کی منافقت کے چہرے دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ کیا عوام دیکھے گا؟ اور پھر ایک کیا کہتے ہیں, آج ایک اور نظم بھی لگائی. وہ کیا لگائی؟ جاگ اٹھا ہے. یار کوئی شرم کریں, خدا کا واسطہ ہے. ان نظموں کی ایک ویلیو ہے, ایک اس کے اندر ہسٹورک ایموشن ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاگ اٹھا ہے. کیا جاگ اٹھا ہے؟ وہ آیا تھا ڈی چوک, جاگ اٹھا تھا. جو اتنی تھیں گاڑیاں آپ کے کارواں کے پیچھے, وہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش جب ہوئی تو آپ بھگوڑے وہاں سے بھاگ گئے F8 سے, سینٹورس کے پاس سے. یہ جاگ اٹھا ہے. اتنی تو رانا ثناء اللہ صاحب منسٹری سے نکلتے ہیں تو پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ عوام کی گاڑیاں ہوتی ہیں جب وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں.
कौन सा जाग उठा है? किधर? जुम्मे के बाद आज देखते रहे जाग उठा है, वो ऐलान हुआ था प्रोटेस्ट का, हम निकलेंगे, जुम्मे के बाद निकलो। कौन निकला? किधर हुआ प्रोटेस्ट? और दूसरी बात, जाग उठा है इमरान खान साहब, पाकिस्तान जाग उठा है, बिल्कुल जाग उठा है, नालायकों के खिलाफ, ना अहलों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, कार्टल्स के खिलाफ, माफियाज के खिलाफ, मुनाफकत के खिलाफ, अफरा तफरी के खिलाफ, फसाद के खिलाफ, बदतमीजी के खिलाफ, गाली के खिलाफ, आपके जो आपकी अपनी नालायकी चोरी है उसके खिलाफ। आप ये नज़में लगाकर, ये झूठ बोलकर, ये मुनाफकत करके आप अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये महंगाई भी आपकी दी हुई है, ये बेरोज़गारी भी आपकी दी हुई है, ये बदतमीज़ी, बदतहजीबी, अफरा तफरी भी आपकी दी हुई है, ये 44,000 अरब का कर्जा भी आपका दिया हुआ है, ये 16% महंगाई भी आपकी दी हुई है, ये 1 करोड़ बेरोज़गार लोग भी आपका तोहफा हैं। आज आटे की कीमत जो है वो आपने 4 साल 35 रुपए से 90 रुपए किलो, और यूटिलिटी स्टोर पे वो आटा जो इंसान नहीं खा सकते उसकी ये कीमत थी। आज 400 रुपया पूरे मुल्क के यूटिलिटी स्टोर्स पे आटा शहबाज शरीफ साहब ने आकर किया 1 महीने के अंदर। और आज मौसूफ कह रहे थे, मतलब इनका लेवल देखें, कहते हैं पंजाब में आटा सस्ता बेचता है शहबाज शरीफ, KPK में आटा महंगा बेचता है शहबाज शरीफ। इनको शर्म नहीं आती? सूबे प्राइस सेट करते हैं आटे की। 9 साल से 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में आप हुकूमत में हैं, आप पता नहीं किस इन्फ्लुएंस में होते हैं दिमागी तौर पर जब तकरीर कर रहे होते हैं। 8 साल से आटे की कीमत खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कीमत लगाती है वो लोग खरीदते हैं। पंजाब ने आपको 2 लाख टन आटे की ऑफर की है, खरीद करके आपको दें ताकि आपके सूबे में कीमत कम हो, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत वज़ीर आज़म है वो खाली खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है, वो खाली अपनी सियासत को इंटैक्ट रखने का वज़ीर आज़म नहीं है, वो वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का है। उसको तकलीफ होती है कि खैबर पख्तूनख्वा में आटा किस कीमत पे, बलूचिस्तान में किस कीमत पे, कश्मीर में किस कीमत में, पंजाब में किस कीमत पे। वो फेडरल सब्सिडी देकर, फेडरल खरीदवा कर वो सूबों में आटे को सस्ता करने की बात करता है। वो प्रपोज कर रहे हैं कि आप यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद को खैबर पख्तून में बढ़ा दें ताकि आवाम को सस्ता आटा मिल सके। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। और उसके बाद पुलिस की बात कर रहे थे, एक वफाक की इकाई खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की पुलिस को लड़ा दिया पंजाब की और वफाक की पुलिस से। ये किया इन्होंने, एक वफाक की इकाई ने हमला आवर हुआ वफाक के ऊपर, ये किया इमरान खान ने पेशावर में बैठकर। बातें करते हैं पुलिस की, बातें करते हैं हम देखेंगे, बातें करते हैं जाग उठा है। बिल्कुल हम देखेंगे और हम करके दिखाएंगे पाकिस्तान से कार्टल्स और माफिया का खात्मा। हम देखेंगे कि आपके झूठ, आपकी मुनाफकत, आपकी अफरा तफरी, आपकी गालियां अब पाकिस्तान की आवाम नहीं सुनती, क्योंकि जाग उठा है पाकिस्तान। पाकिस्तान आपकी झूठों और मुनाफकत को अब नहीं सुनेगी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, कहते हैं IMF वो लेक्चर दे रहे हैं जिस वजीर को निकाला इमरान खान ने। 5 वजीर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो जो शौकत तरीन साहब हैं वो तो प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी ना करें, खुदा का वास्ता है। आपकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि 30 रुपए बढ़ाना है, हर महीने 17% टैक्स लगाना है। ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खुदारा ये काम ना करें। और दूसरी बात, एक और में इंपॉर्टेंट बात, कहते हैं कि क्यों हमने ताखीर की। और वो शख्स जो आज महंगाई पे लेक्चर दे रहा है वो क्या कह रहा था कुछ अर्सा पहले कि मैं टमाटर और आलू और प्याज की कीमतें ठीक करने नहीं आया। वो कह रहा था कि मुझे कहते हैं कि महंगे प्याज हैं, महंगे टमाटर हैं, मैं उसको ठीक करने नहीं आया। बिजली की कीमत पे आज कागज लहरा के लेक्चर दे रहे थे। मैं सिर्फ ये बता दूं कि 2018 में बिजली का यूनिट 11 रुपए का था, इनके कीमत 26 रुपए का था। जो 15,000 का बिल, जो 800 रुपए का बिल 2 बत्ती और पंखे पे चलता था ना, वो 2018 और अभी जब ये गए हैं तो वो 3,000 रुपए पर पहुंच गया था। 11 रुपए यूनिट जो है वो 26 रुपए पे चला गया था।
गैस जो है वो 600 रुपए से 1400 रुपए, ये जो लहरा रहे थे ना 1.5 महीने का झूठ बोल रहे थे, उनको ये पता होना चाहिए कि बिजली और गैस की कीमत में कितना इजाफा उनके दौर में हुआ था। घी जिसकी बात कर रहे थे वो 150 रुपए से 550 रुपए पे इनके दौर में गया था। उसके बाद जो बात कर रहे हैं महंगाई की, हाय हाय हाय, बड़ा दर्द है, बहुत दर्द है। काले चश्मे पहनकर महंगाई पे बात हो रही है। महंगाई जो है वो 3% से 16% की आपने। हम तो पेट्रोल को कितने पे छोड़ के गए थे? 87 रुपीस के ऊपर। डॉलर को छोड़ के गए थे 115 के ऊपर। क्या बातें करते हो? कोई इन्फ्लुएंस जिस चीज़ का है, मैंने कहा था कोई और गोली खाएं, सुकून करें, ऐसी ज़हनी हालत में टीवी पर नहीं आना चाहिए। और कहते हैं ये पहली दफ़ा हुआ है, पहली दफ़ा हुआ है। मैं आवाम को बताना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म ने इनका तयशुदा IMF का प्रोग्राम शरायत, जो इनकी नालायकी की वजह से कमज़ोर फुटिंग के ऊपर इन्होंने शरायत पे दस्तखत किए, जिसकी वजह से आज ये हमें उसकी पासदारी करनी पड़ रही है। और आवाम को हमने नहीं छोड़ा बेसहारा। हमें नहीं पता कि हम पेट्रोल महंगा करेंगे तो हमारी सियासत और क्या इम्पैक्ट होगा, हमें नहीं पता। हमने उससे बियॉन्ड जाकर, उससे बालातर होकर, क्योंकि मुल्क की मईशत ठीक हो जाए, मुल्क में महंगाई कम हो जाए, आज नौजवान को रोज़गार मिल जाए, और उसके इक़दामात के लिए पेट्रोल हमारे लिए बढ़ाना पहले दिन बड़ा आसान था। इनकी समरी थी, इनका मुआहदा था, इन्होंने सब्सिडी जो दी उसका ख़जाने में पैसा नहीं था, हम पहले दिन पेट्रोल बढ़ा देते। लेकिन कहा नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज साहब ने कि ऐसा नहीं होगा, हम पहले रिलीफ बनाएंगे, पहले रिलीफ पैकेज देंगे, उसके बाद हम पेट्रोल बढ़ाएंगे। आज अगर पेट्रोल बढ़ाया है, पहला जो पेट्रोल इनका मुआहदे के दौरान जो बढ़ाया गया है, उसके ऊपर आज जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आप बराह रास्त देख रहे थे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने ISI को स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दे दिया। अफसरों की तैनाती, तकर्री और तरक्की के हवाले से स्क्रूटनी की जिम्मेदारी ISI को दे दी गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म ने ISI को स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दे दिया है। अफसरों की तैनाती, तकर्री और तरक्की के हवाले से स्क्रूटनी की जिम्मेदारी ISI को दी गई है। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। बाबर शहजाद, बताइएगा इस बारे में। देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेट की तकर्री तैनाती के हवाले से वफाकी हुकूमत का अहम तरीन फैसला सामने आया है। वज़ीर आज़म ने ISI को स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दे दिया है। वफाकी ब्यूरोक्रेट की तैनाती, तकर्री और तरक्की के हवाले से स्क्रूटनी की जिम्मेदारी ISI को तफवीज़ की गई है। अफसरों की अहम और अवामुन्नास से मुतल्लिक ओहदों पर तैनाती से कबल ISI इंटेलिजेंस स्क्रीनिंग रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्म इसरार खान ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में तारीख रकम कर दी। तालिब इल्म इसरार खान ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में पाकिस्तानी लिबास, शलवार कमीज पहनकर और सर पर पश्तून पगड़ी बांधकर तकरीर की। ऑक्सफोर्ड यूनियन 1823 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कायम की गई थी। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्म इसरार खान ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में तारीख रकम कर दी। मल्का बरतानिया की प्लाटिनम जुबली की तकरीबात लंदन समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में ज़ोर शोर से जारी हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे, वसीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताएगा। जी बिल्कुल, मल्का बरतानिया की प्लेटिनम जुबली की तकरीबात बड़े ज़ोर शोर से जारी है। लंदन समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में रात भर पार्टीज़ हुई और आज सुबह सवेरे जो है जो बड़ी मार्केटें और बड़े स्टोर्स तो बंद हैं, लेकिन पाकिस्तानी, एशियाई, इंडियन, बांग्लादेशी जो मार्केटें हैं और रेस्टोरेंट है वो आज सुबह ही खुल गए थे। चूँकि लंदन में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है।
लाखों की तादाद में बरतानिया से, यूरोप से लोग जो है मलका बरतानिया की प्लेटिनम जुबली की तकरीबात और हॉलीडेज़ के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो एशियाई इलाके हैं लंदन में और मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, दूसरे शहरों में जहाँ पर पाकिस्तानी खाने जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, बिलखसूस ब्रेकफास्ट और लंच टाइम में जो पाकिस्तानी जो है लोग हलवा पूड़ी और दीगर। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।